Hi everyone, I'm Reina Agustine and welcome to Community Impact. Today my guest who is going to talk about Khalsa 1699 watches, which was founded in 2019, inspired by the 320th anniversary of the founding of the revered Khalsa Panth. Each Khalsa 1699 watch carries the Khanda Sahib and with it, its powerful and exotic history, a magical martial heritage and a statement like no other. To wear a Khalsa 1699 timepiece is to embody the spirit of freedom, to be free from hate and fear. The team at Khalsa 1699 watches put their hearts and souls into the conceptualization, manufacture and presentation of each watch. Each collection is designed with purpose, selecting materials, proportions, movements and contrasting elements to be a manifestation of the spirit of the brand. So I have the pleasure of interviewing Abby and Bhawna MMahajan, who are here with me. Hi Abby and hi Bhawna. Hello. So I have the pleasure of interviewing Abby, who is the business partner of Danny, who is the founder of the watches, and along with them is Bhawna MMahajan, who is the ambassador for the watches. Hi guys. Hello. Thank you so much for coming in. Oh, thank you so much for having us. Thank you. So Abby, the watches, they look amazing. And there's an amazing history behind it. So to start with, I would want to know, what does Khalsa 1699 mean? Sure. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਨਾ ਆਗਸਟਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਆਫ them ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ 1699 ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि एक चमत्कार खंडा बनाया हुआ सी। बहुत बढ़िया है, आपके जो डिजाइन्स हैं वो बहुत बढ़िया है और आपने चूज किया है ये गॉर्जियस भावना महाजन, जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जब से मैं ब्रिस्बेन आई हूँ, बहुत सारे फैशन शोज में देखा है, आपने इतना सारा इन्फ्लुएंस किया है। सो भावना महाजन जो आपके एम्बेसडर हैं, राइट, तो कैसे आपने चूज किया भावना को? जब भावना की मैंने पहली बार प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल चेक की, शी इज बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इंडिया से लेके यहाँ तक ब्रिस्बेन में, तो ये मेकअप आर्टिस्ट भी है और प्लस इनकी जो क्लोथिंग देखोगे वो ट्रेडिशनल थी, जैसे पंजाबी टच बहुत ज़्यादा था। और व्हेन आई फाउंड आउट शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाबी है, पंजाबियत को जानती है, तो मैंने सोचा ये खालसा 1699 की घड़ियों के लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी और भावना को देखा, मैंने बोला इट जस्ट फिट्स सो परफेक्टली भावना। तो भावना, आपने ये एक्सेप्ट क्यों किया? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करती रिलीजन को, बिकॉज आई बिलीव इन लाइक डूइंग गुड डीड्स एंड ऑल दैट। सो वंस ही एक्चुअली आस्क्ड मी अबाउट कि खालसा के लिए ही वांट्स मी टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस, एंड आई मेरे लिए खालसा आई थिंक रिलीजन नहीं है, इट्स बेसिकली अ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, like, you know, free from hatred and fear, and this is who I am. Like, agar up, you know, we know each other for such a long time, so I think you know me. Like, I'm kind of, I believe in like live and let live. That's right. You know, so I think that's the perfect reason for Khalsa, because when you actually talk about Khalsa, it's so powerful. Even when he showed me all these watches, when I actually went to his shop and I looked at it, and I was like, those goosebumps, what I got, I was like, damn, like that's it. And you chose to be the ambassador. I couldn't say no. I just could not say no. They are beautiful. Those watches are absolutely amazing. absolutely Every time I wear it, I just feel so powerful and so positive. So, you know how I see it? I see it as keeping the culture alive Exactly. in a different It does. country. True. You Yes. know, is that the reason? यस, जैसे हमारी सेकंड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई है, अगर बात करें यूके तो 10 जनरेशन तक स्टार्ट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये था कि कल्चर के बारे में बोलते जा रहे हैं। कड़ा तो सबको पता है, डालते भी हैं, पर वो खंडा कहीं ना कहीं मिस हो रहा था जी। तो जब हमने इसके बारे में सोचा अगर खंडा घड़ी पे आ जाए तो वो जो जनरेशन, एक 7th 8th जनरेशन स्पेशल यूके, जब वो डालेंगी प्लस कड़ा एक हाथ में डालेंगे तो वो प्रेजेंट करेंगे पंजाबी को, पंजाबियत को।
क्योंकि लोग हमेशा पूछेंगे कि सिंपल क्या है। एग्जैक्टली पूछते हैं और यही exactly. आपको मौका मिलता है उनको बताने का, अपने बताने का। कल्चर के बारे में बताने का, है ना। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, जैसे ग्रेट कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे इंडिया ऐसा कोई भी इंडियंस को देखते तो बोलते हैं ये बिंदी क्या है। Exactly. है कि नहीं। Yeah. तो दैट्स अ वंडरफुल वे। मेरे पास गोरे पीपल आते हैं, वाइट पीपल आते हैं, चाइनीज भी आते हैं। वो पूछते हैं ये ऐसा सिंबल क्यों है। अगर मेरी शॉप में आके देखोगे तो बड़ा सा खंडा लगा हुआ है जिसके नीचे लिखा 1699। तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भी ये क्या है। तो मैं प्राउडली, बड़े प्राउड से उनको बताता हूँ कि ये क्या चीज है। और ये ऐसी एक घड़ी आई है जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है जी। ठीक है। तो वो लेके जाते हैं, कोई भी मिस करके नहीं जाता। अरे वाह। और मुझे बताते हुए प्राउड फीलिंग होती है। दैट्स नाइस। तो आपने डैनी ने शुरू किया ये, हाँ और जी। वो मेलबर्न में है, बिल्कुल राइट। और फिर आपको कैसे ये अपॉर्चुनिटी आया? एक्चुअली जब मैंने इंस्टाग्राम पे पहली बार इन घड़ियों को देखा तो मैं खुद पंजाबी हूँ, तो वो अंदर वाला वो जाग गया था यार घड़ी। पहले मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करते मैंने बोला थैंक यू पाजी बिकॉज यू ब्रिंग समथिंग वी नेवर थॉट। या तो मैंने उनको बोला कैन आई बी योर रिटेलर। तो उसने मुझे उस टाइम पे कोई जवाब नहीं दिया। आफ्टर 7-6 मंथ ही चेक माई होल प्रोफाइल चेक करके उसने देखा भी एक पंजाबी लड़का है, यंग है, थोड़ा इंस्पिरेशन भी है। तो उसने मुझे दोबारा से कांटेक्ट किया। तो वहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई। वाह, कितना अच्छा लगता है ना कि कोई यंगस्टर ऐसे कोई कल्चरल चीज देखता है Yeah. और वो इंटरेस्ट लेके कांटेक्ट करता है एग्जैक्टली एंड वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। 2019 से आप कब से कर रहे हैं ये बिजनेस? एक्चुअली इसको घड़ियों को स्टार्ट हो गए हैं 4-5 साल हो गए हैं। मैंने लास्ट 14 मंथ से स्टार्ट किया है। तो 14 मंथ से अगर मैं बोलूँ, घड़ियों ने घड़ी नहीं, ये एक्चुअली जो खासा 1699 ब्रांड स्टार्ट हुई है ना, इसने मुझे प्रमोट किया है। मेरा अगर टिकटॉक देखो लाइव भी चल रहा है तो मेरे काफ़ी मिलियन व्यूज़ हैं। मुझे लोग इसकी से ही जानते हैं, वैसे मुझे कोई नहीं जानता था। वाओ, दैट्स तो अमेजिंग। अगर घड़ियाँ देखोगे, वेबसाइट भी है हमारी www.obsessedlifestyle.com.au। तो वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। मैन, वुमेन्स, किड्स के लिए भी बहुत कुछ आ अरे रहा है। वाह। हाँ, किड्स के लिए भी बहुत कुछ आ रहा है। तो बड़ा कुछ लेके आएंगे और प्यार भी बहुत मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी से, और भी हमारे स्पेशली पाकिस्तानी जी, वो भी बहुत कॉल करते हैं। और कई बार तो ऐसी कॉल आती है ना, जैसे थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जी। वो कहते हैं थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वन। एंड यू फील सो गुड, आई फील प्राउड। यू नो, यू फील सो गुड। कोई चीज़ हम कर रहे हैं जिससे हमें शांति मिलती है, रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि हमने किसी चीज़ को प्रमोट किया। क्योंकि इस जर्नी में अभी देखो 2 जनरेशन 3 जनरेशन में लोग साड़ी पहनना भूल जाएंगे। कैसे बिल्कुल। साड़ी पहनते हैं, लोगों को पता नहीं है कि बिंदी भी लगाता था कोई। एग्जैक्टली यू नो, बिल्कुल। अगर वो ट्रेडिशन हम लाइव नहीं रखेंगे, अगर हम माइग्रेट होते हैं तो भी, तो ये जो आपने अपना कॉन्सेप्ट ओपन किया है ये मैंने कभी कहीं नहीं देखा है, और ऊपर से वॉचेस में। और जो आपने अभी बोला कि रीना कड़ा तो सब पहनते हैं, चलो इजी है, लेकिन जो खंडा है वो हमेशा रखने के लिए वो आसान नहीं है। बट अगर घड़ी में है एक सिंबल तो कितना बढ़िया रहेगा। और जब हमने स्टार्ट किया है, या कोई भी काम है, स्पेशली वेस्टर्न, जब आप वेस्टर्न में रहते हो तो बहुत कुछ एक्सपेंसिव होता है। हमने बड़ा कुछ सहा है, क्योंकि जब इसका खंडे को तैयार करते थे कभी डिज़ाइनिंग गलत होगी, कभी कुछ गलत हो गया, फिर भी हमने कभी ऐसा नहीं सोचा भी पैसे लग रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। उसको ऐसा कर करके, ऐसा तराश के सामने की घड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत अच्छी लगती है। परफेक्शन। हाँ जी। गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सो जब से आपने शुरू किया, आपने बोला 14 मंथ से शुरू किया है, जैसे आपने मुझे बोला कि कुछ इमोशनल भी होता है, कोई कॉल्स आते हैं जिसमें इमोशनल टॉक्स होते हैं, तो हमें एक बताइए कैसा इमोशनल? मुझे कॉल आई थी इटली से। वो जैसे आपको पता है खंडा है पंजाबी, तो वो सिख था, एक प्रॉपर सिख। तो उसने, क्योंकि वो प्यार करते हैं अपने कल्चर को, गुरु ग्रंथ साहब को दिस ना, उसने फ़ोन किया था। वो सच में बताऊं, रोने लग गया था। वाओ। क्योंकि वो खुशी से रो रहे थे जी। खुशी से रो रहा था कि भी पाजी है, मुझसे बड़ा था पर मुझे वो पाजी कह रहा था, एज ए ब्रदर। तो कह रहा भी ये जो आपने लेके आई है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बाहर रहते हुए आप थोड़ा कल्चर को उतना टच नहीं कर पाते हो। जगह पर यही चीज़ मिल जाती है, कुर्ता पजामा डाल रखा है या आपने पगड़ी बांध रखी है, कड़ा डाल रखा, तो ये एडिशनल चीज़ है जो आपके गुट पे अच्छी लगती है। जी। तो कुछ ऐसी भी कॉल आती हैं।
कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे थर्ड culture को, पर्सन का I जो know, हमें right? जानते भी नहीं है उनका कॉल आना। तो व्हाट्स द फ्यूचर, क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है अपने वॉचेस का? ओके, पहले तो अभी देखो सेकंड जनरेशन की वॉचेस स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑलरेडी फिनिश, सेकंड जनरेशन जैसे आप क्वालिटी देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैं एक बात बताऊंगा, ये घड़ियाँ जो बिग ब्रांड है रोलेक्स, वो उसको आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी फीचर तैयार किया गया है वो बड़ी केयरफुली 5 खंडे लगे हुए हैं, क्योंकि वो 5 प्यारे को समर्पित हैं। तो उसके आगे क्या आ रहा है, तो बहुत कुछ रहा है, पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। टाइम टू टाइम आप अगर हमारी वेबसाइट पे ध्यान से देखोगे www.obsessedlifestyle.com.au, उसमें बहुत अच्छी चीजें आती रहेंगी। मुझे वेबसाइट का नाम बढ़िया लगा, ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड लाइफस्टाइल। क्यों है ये ऑब्सेस्ड लाइफस्टाइल? क्योंकि इस ऑब्सेस्ड लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा कुछ आएगा कि आप ऑब्सेस्ड होते चले जाओगे। जैसे आपका खासा 69 वॉचेस के साथ कुछ और प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हैं, तो आप जब भी देखोगे वेबसाइट पे ऑब्सेस्ड ही मिलोगे। क्योंकि इतना स्टाइलिश भी लगता है। I love wearing watch. वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप ज्वेलरी ना पहनो और एक वॉच पहन लो, the look is different. I know, right? So भावना, आप क्या करते हैं खालसा वॉचेस को प्रमोट करने के लिए? आपका रोल? Basically, just I think कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खालसा speak for itself. तो I don't think so that I have to promote it in any way. तुम पहनो और बस लोग आपसे पूछने लग जाते हैं। So, स्पेशली भावना जैसे मेकअप करती हैं जी, तो ब्रिस्बेन में मुझे नहीं लगता, क्योंकि भावना को नहीं जानता होगा, अभी जो वेडिंग सीजन चल रहा है तो सारी दुल्हन इसी के थ्रू के जा रही है ना। बिल्कुल। तो इसके जो ये प्रेजेंट करती है उनको बताती है खासा किसी चीज, वो फिर मुझसे आगे पूछते हैं। हम जो एक कल्चर है शादियों में जी, जैसे को गिफ्ट लेना देना, तो इंडिया में नहीं शादी कर रहे, यहाँ शादी कर रहे हैं, तो क्या चाहिए उनको? समथिंग रियली गुड टू गिव टू इन-लॉज। और सबसे बढ़िया गिफ्ट है ये, इनफैक्ट फॉर वेडिंग्स के लिए इवन हस्बैंड वाइफ कैन एक्चुअली बाय इट फॉर ईच अदर, लाइक फॉर द फर्स्ट, you know, as a wedding present. बेस्ट प्रेजेंट, Exactly. तो इसमें गोल्ड है क्या? यस, जो एक्सपेंसिव घड़ी हैं थोड़ी जो 1800 से स्टार्ट होती हैं, उसमें 22 कैरेट प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है उसमें। हाँ जी। ओके, वाओ। जैसे आप बोल रहे थे कि भावना मेकअप आर्टिस्ट हैं और ब्रिस्बेन में कौन नहीं जानता, तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता चल रहा था कि आज भावना आ रही है तो मैं अपना मेकअप लेकर के अंदर रूम में मैं सोच रही थी, अगर कुछ उन्होंने बोला कि मेरा आई शैडो ठीक नहीं है, मैं बहुत ध्यान दे रही थी मेरे मेकअप पर। तो भावना, आपको सब जानते हैं और आपका जो मेकअप का स्टाइल है बहुत बढ़िया है, और मेकअप जो आप करते हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो आपका अप्रोच है, इसीलिए आपको चूज किया गया है कि एम्बेसडर बनने का, क्योंकि आपका जो अप्रोच है कैमरा के सामने और लोगों के साथ, यू नो, दैट्स अमेजिंग। और जैसे आप बता रहे थे कि इसमें गोल्ड है और ये जो वॉचेस हैं शादियों में देने में कितना बढ़िया लगता है, बिल्कुल। और इन लॉज के लिए कितना अच्छा लगता है, हस्बैंड वाइफ के लिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसा गिफ्ट, और वो भी हमारा कल्चरल वेडिंग्स जो यहाँ पे हो रहे हैं उसमें इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अब इस पैंडेमिक में हम वापस जा भी नहीं पा रहे, तो शादियां यहाँ हो रही है। सो व्हाट एन आइडिया। और अगर ये 14 मंथ से आप कर रहे हैं तो ये पैंडेमिक में शुरू हो गया है, आपने जो बिजनेस किया है, तो क्या आपको इफेक्ट हुआ ये बिजनेस में? नहीं, हमें कोई इफेक्ट नहीं मिला, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन सर्विस है बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। स्पेशल DHL के साथ है हमारी, DHL सबको पता है एक रिलायबल कुरियर कंपनी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है जी। अगर शॉप पे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो आपका शॉप कहाँ पे है अभी? मेरा शॉप रिचलैंड में, शॉप 199 प्रोग्रेस रोड रिचलैंड्स। ओके, रिचलैंड्स में है। तो अभी आपने बोला कि ऑनलाइन है, दैट मींस आप वर्ल्ड वाइड सेंड करते हो? बिल्कुल, दैट्स अ गुड वन। वर्ल्ड वाइड, यस, दैट्स अ गुड वन। तो आपका सोशल मीडिया का नाम क्या है? सोशल मीडिया खालसा ब्रिस्बेन, खालसा वॉचेस ब्रिस्बेन, वही एक पेज है? वही एक पेज है। टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। That's excellent to know. The reason why I'm asking is अभी आ रहा है क्रिसमस और उससे पहले आ रहा है दिवाली में अगर आपको गिफ्ट देना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। कपड़े दो तो फिट नहीं हो सकता है, इयररिंग्स पसंद ना आए हो सकता है,
बट वॉचेस अगर बड़ा भी पड़ गया तो छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल। छोटा भी पड़ गया तो बड़ा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट. Nudge, nudge, wink, wink. True. So, Abby and Bhavna, fantastic कि ये जो गिफ्ट्स का ना सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि मैं भी खरीदने वाली हूँ. There you go. Yeah, Another sale, honey. Absolutely. भूलना मत, जो हमारी वेबसाइट है www.obsessedlifestyle.com. रीना ने तो मेरे ख्याल ऑलरेडी देख लिया है, बहुत बढ़िया. तो आप भी खरीदो तो बहुत अच्छा है. अपने पार्टनर को, वाइफ को, ब्रदर को, डैड्स को, सारी तरह की घड़ियां हैं, तो आप उनको अच्छा गिफ्ट दे सकते हो. दिवाली आ रही है, भाई दूज आ रहा है, बिल्कुल. क्रिसमस आ रहा है. क्रिसमस आ रहा है. Yeah. मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जी, इसको बाय बिल्कुल, करने के लिए. बिल्कुल. बहुत सारे ओकेजन्स एंड इवेंट्स आ रहे हैं. हैवी एंड भावना, हेल्थ जो है वो हमेशा से मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है पहले से ही. रीज़न ये है कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. हेल्थ है तो वेल्थ है. तो आई नो दैट आप लुक आफ्टर करते हैं. एबी, आपका जो ये सब्स 24/7 है वो क्या है? वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट. बिल्कुल. सब्स 24/7 जो रिचलैंड है वो एक सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन शॉप है. मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो यस, उसमें सब तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. डजंट मैटर आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, डेली लाइफस्टाइल के लिए हर एक तरह का सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ पे. तो आपका रूटीन बताइए मुझे. रूटीन Health हमारा routine. मंडे टू फ्राइडे है 9 to 6 PM और वीकेंड्स पे है 10 to 6 PM. अच्छा, वो आपका शॉप का रूटीन है. बिल्कुल. फैंटास्टिक. आपका हेल्थ रूटीन बताइए. Okay, I love to Yes, absolutely, क्योंकि मैंने देखा है वर्कआउट करते हुए. बिल्कुल. मेरा जो रूटीन है आफ्टर शॉप, जो 6 बजे बंद करके घर पे जाके चेंज करके प्री वर्कआउट लेके सीधा जिम में, तो 2 घंटे में वहाँ पे स्पेंड करता हूँ. 2 घंटे हाँ, एवरी डे. आई नो राइट. भावना, इतना टाइम किस वर्किंग 7 days एंड 2 घंटे जो मैं अपने आप के लिए, वो कहते हैं ना, पैसा कमा रहे हो फैमिली के लिए, कुछ कर रहे हो किसी के लिए कर रहे हैं, जो एक चीज है जो अपने लिए करते हैं वो आपकी हेल्थ जो लुक आफ्टर करते जी, हैं, वो बहुत आपके साथ इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. तो ये जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कैसे आया आपको? एक फनी स्टोरी है. I don't know you guys believe or not, but मैं एक बहुत ही हेल्थी गाय था, जिसकी ओवरवेटेड. सो इंडिया में हम उसको हेल्थी अच्छा, कहते हैं. healthy कहते हैं. It's not healthy. healthy, overweighted. ओवरवेट. हम लोग Overweight प्यार था. से इंडिया में उसको हेल्थी ठीक कहते हैं. है. तो जैसे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, स्टूडेंट आया था, तो एक दिन यूनी जाना था. जी. मेरे लैशेस नहीं टाई अप हो रहे थे, ट्रेन निकल रही थी, लैशेस टाई अप नहीं हो रहे थे, गर्मी हो रहा था, तो वहां से चला नहीं यार, दैट्स इनफ. जिम जाना स्टार्ट किया, जिम के बाद पीटी बन गया, पीटी के बाद न्यूट्रिशन, फिर खुद का बिजनेस. कितना बढ़िया है ना वो, जो आपको रियलाइज होता है कि मैं एक moment. लेस नहीं बांध पा रहा हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ अपने हेल्थ को लेकर के. Seriously. वेरी गुड थिंकिंग. मैं बताऊं, वो उसी दिन मैं बिना लेसेस बांधे गया था, ऐसे ही. That's a क्योंकि टाइम नहीं था ना, क्लास जी. अटेंड करना था, ऐसे ही चला गया. फिर जब वहां जाके काम थोड़ा सांस लिया तो आराम से क्लास में बैठ के बांधा. पर उस दिन से लेके आज तक मैंने आज So हेल्थ को amazing. लेके कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. फैंटास्टिक है अभी. एक्सक्यूज आते हैं लोगों के, टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज जी. हैं. अगर आपको कुछ करना है तो आप टाइम देख लेते हो. आप बिल्कुल. खुद का टाइम निकाल लेते हो उस चीज के लिए. डजंट मैटर आपका कौन सा एज ग्रुप है, अगर आपने रियलाइज किया कि मुझे अपने हेल्थ को ध्यान देना है, दैट्स इट. Exactly. आप शुरू हो जाइए तब से. लोग एक्सक्यूजेस जो देते हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि ओ मेरा स्टडीज है, मैं बाद में कर लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, और इसीलिए लोग कहते हैं जैसे आपका सप्लीमेंट्री का बिजनेस है, लेकिन आपका दूसरा बिजनेस भी है. लोग बोलते कि 9 to 5 जॉब हो गया, फिनिश हो गया. नहीं, आपको पसंद क्या है जिंदगी में, जाइए और वो करिए. जैसे कि आप भावना, आप कहीं और काम करते हैं, प्लस आप अपना खुद का करते हैं. बिल्कुल. तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और आप इतने फिट कैसे हैं, बताएं. वेल, मुझे एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा जिम से कोई नाता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंकली, बिकॉज जब मैं जिम जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुम हूँ कहीं, लाइक आई गेट लॉस्ट. सो आई एम इनटू योगा बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक स्कूल के टाइम से. आई बिलीव इन आयुर्वेदा, आई बिलीव इन योगा.
तो these are the long lasting kind of things. So वही बचपन से चलता आ रहा है ये योगा एंड ऑल दैट स्टफ. कई बार बीच में छूट जाता है, एज यू सेड, एक्सक्यूजेस की टाइम नहीं है, थक गए हैं, और ऊपर से मेरा रूटीन ऐसा है बिकॉज आई एम मेकअप आर्टिस्ट, सो आई डू अर्ली मॉर्निंग वेडिंग्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से वो रूटीन टूट जाता है, और एक बार टूट गया तो वापस जाने में टाइम लगता है. लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा जो काम है इट इज वेरी लाइक स्टैंडिंग जॉब सारा दिन, और झुकना बहुत वियर्ड उसमें एंगल में, तो जब मेरी बैक में प्रॉब्लम आती है देन मुझे फिर योगा याद आ जाता है, फिर मुझे देन आई गो बैक टू रूटीन. सो बेसिकली यस, कई बार सोचती हूँ कि जिम जाना है मुझे, लाइक एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड ऑल, बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. बट यस, आयुर्वेदा एंड योगा कुछ ऐसा चीज है कि आप घर में बैठे कर सकते हो. आपको सो योगा, जैसे आपने मुझे बोला योगा घर पे बैठे कर सकते हैं. बिल्कुल. जिम के बारे में जैसे आपने मुझे बोला, जिम में मैं जाती हूँ तो पहले तो मैं सोचती हूँ यार ये इक्विपमेंट मैं सही अगर यूज नहीं करूंगी तो लोग मेरे को क्या, oh my god, this is exactly, लोग सोचेंगे मेरे को कुछ नहीं आता है. तो जिम को जा करके हेलो बस मुझे वो ट्रेडमिल पे भाग के like that I can do really good. Swipe I'm out. Yeah, that's right. Treadmill. Yes, I can do it like treadmill करके. I love yoga. स्कूल टाइम से मैं भी करती आ रही हूँ. मैंने तो इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं और मेरे दो दोस्त, सिखनी दोस्त, पंजाब से गुजरात में बड़े हुए, हम लोगों को बनना था रेखा जैसी सुंदर. तो हमने सोच लिया हमें अगर रेखा जैसे बनना है तो रेखा करती थी योगा, तो हम लोगों ने शुरू कर लिया रेखा जैसे बनना है करके योगा शुरू किया. लेकिन इट रियली हेल्प. ठीक है. और जैसे आप सप्लीमेंट्री कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि योगा कर रहे हैं, लेकिन डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो आपका डाइट का रूटीन बताइए. डाइट, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. विदाउट डाइट आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आप कहीं नहीं जाने वाले. एक अच्छा खाना, अच्छा यानी कि बॉडी को फ्यूल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप जिम जाते हो, ब्रेक डाउन करते हो, उसके बाद अच्छा खाना खाओगे तो आपको रिकवरी अच्छी मिलती है, प्लस आपके जो मसल्स बिल्ड होते हैं उससे ना, वो अच्छा खाना तो जरूरी है. और मेरा जो है वो बहुत बोरिंग फूड है. चिकन, ब्रोकली, राइस, उसके साथ जो मल्टीविटामिन्स, इसमें बहुत कुछ है. पर जो अगर लोअर स्टार्ट से करना चाहते हैं वो हेल्थ ऐसा है कि ऑयली कम और जंक फूड छोड़ के बहुत अच्छा. बोरिंग फूड जैसे भी हो, लेकिन वो जो अपन का हेल्थ और हमारा माइंड ठीक रखता है, वो बोरिंग नहीं है. अगर आप एंजॉय करते हो अपना खाना तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज बोरिंग. भावना, आपका क्या रूटीन है खाने का? मेरा रूटीन वही कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए. बैलेंस डाइट है, आई मीन लाइक सुबह वही आई नॉर्मली टेक 2 eggs, और उसके बाद में लाइक शाम जो दोपहर का खाना है दैट इज द मेन मील बेसिकली. सो यू हैव लाइक थोड़े से चावल, एंड आई डोंट ईट रोटी बिकॉज आई एम लाइक अ ग्लूटेन इंटॉलरेंट. सो यस, द दाल एंड curry normally of course, and I'm a chatkori, so खाने को लेके I cannot compromise. I can't eat bland food, which is my husband is actually basically a bodybuilder. He used to be. He's very health conscious. तो उनका खाना वैसा सा प्लेन है, चिकन बिना नमक के उसके, but I want my chaat masala on it and then sauce on the side. That's it, as long so, as yeah, as long as it's like balanced. And I don't eat much. Like in the sense like थोड़ा खाओ, सब कुछ खाओ लेकिन थोड़ा खाओ. आप उसको एक्सेस में करोगे तो वो आप ही को कुछ भी एनीथिंग इन एक्सेस आई थिंक इज जस्ट बैड फॉर हेल्थ. सो आई थिंक इट इज लाइक अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, एंड जितना आपको चाहिए उतना, दैट्स इट. बट एंजॉय योर लाइफ. I mean, like, I don't compromise. That's one thing. So absolutely, viewers are going to enjoy your watches, and thank you for the definitely जो आपने हमको ये advice दिया food और workout को लेकर के, बहुत important है. अगर हम आपको supplements आपका लेना है तो हम कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? Supplement मेरी online नहीं है, supplement की only shop है. Shop मेरी जो वो रिचलैंड ब्रिस्बेन में, और शॉप एड्रेस है शॉप 4199 प्रोग्रेस रोड रिचलैंड्स. और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया जो हमारा है सब 24/7 रिचलैंड. दैट्स द बेस्ट वे टू फाइंड मी. भावना एंड एबी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इंडिविजुअली, कि अगर आज के यंगस्टर्स को आप एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगा एबी? सबसे पहले तो यंगस्टर को एडवाइस सिर्फ एक है कि मैं जो खुद बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि ठीक है, एक जॉब करना एक अच्छी बात है, ठीक है ना. बिजनेस ऐसा एक चीज़ है कि आप एक बेस्ट लाइफ देख सकते हो, ठीक है ना. जॉब को लेकर कई ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं. आप थोड़ा, मैंने कई देखे ऐसे
जो लाइफ में सब कुछ छोड़ के निकल गए क्योंकि वो एक जॉब पर रिलायबल थे। बिजनेस कुछ ऐसा होता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छा सपोर्ट फैमिली को कर सकते हो, प्लस जो आपके नेबर्स यानी कि रिलेशनशिप्स में यानी कि चाचे ताई उसको भी सपोर्ट कर सकते हो। तो यंगस्टर को ये रहेगा कि ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट गोल। तो रिस्क लो, ऐसा? रिस्क लो, समथिंग। I like that. And Bhawna, what about you? What's the advice you would like to give? Well, मेरे हिसाब से आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं हर एक चीज़ को लेके। तो आई वाज लाइक काम डाउन, थोड़ा वक्त लो, एंजॉय करो लाइफ को, लिव योर लाइफ। उसके बाद में सेल्फ लव जो हम लोग आजकल बोल रहे हैं पर वो बहुत सेल्फिशली हो गया है। वी डोंट थिंक अबाउट अदर्स एनी मोर। सब ले लो, मुझे दे दो। सो आई थिंक आई वॉन्ट टू फोकस, लाइक आई वॉन्ट टू से समथिंग कि लो लेकिन दो भी थोड़ा सा। सो या आई मीन लाइक स्ट्रेस नहीं लो, खुले दिल से जियो, लिसन टू योर हार्ट, डोंट लिसन टू योर ब्रेन टू मच, बिकॉज दोनों को सुनना चाहिए, लेकिन आई थिंक दिल की बात हमेशा सही जाती है। और सेल्फ लव को सीरियसली लो, लेकिन इतना नहीं कि आप दूसरों को, अपने आसपास के लोगों को भूल जाओ। सो आई थिंक Just chill. Just chill. Just chill. Pleasure having you both. Thank you guys. Thank you very much, Thank you so IndozTV. Thank you, Bhawna, and thank you, Abhi. Thank you, Reena.